Prayer changes things. तो प्रार्थना चीजें बदल देती है। And then prayer destroys Satan, prayer destroys sickness, prayer destroys cast out demon. So prayer is very important. तो प्रार्थना बीमारियां भी छुड़ाती है, प्रार्थना शैतान से भी छुड़ाती है, प्रार्थना अलग अलग चमत्कार भी करती है। I also say in the church, in Christian life, prayer, reading the word of God is very important. पास्टर हमेशा कलीसिया बोलते हैं कि प्रार्थना करना और परमेश्वर का वचन पढ़ना दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। And worship. और आराधना करना। That's why when you come to church, इसलिए जब चर्च आते हो, firstly we worship सबसे God. पहले हम क्या करते हैं? आराधना करते हैं। We adore God. प्रभु की हम प्रेम करते He हैं is a powerful. कि प्रभु में He is सामर्थ्य a है, mighty. उसमें सामर्थ्य है, True song. भजन And गाते then हैं। now secondly we go to the word of God. फिर हम वचन सुनते The हैं। Bible says God's word is God himself. बाइबल बताती है कि वचन खुद परमेश्वर है। God is the one who speaking to us through his word. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। And then also in the end of that then we pray to God. और अंत में क्या करते हैं? हम सब मिलकर प्रार्थना So करते हैं। prayer is that now you listen the word of God. प्रार्थना मतलब आपने वचन को तो सुन लिया। Then the prayer is that now you are already listened to God. अब जैसे आपने परमेश्वर की सुन ली है ऑलरेडी, Prayer is that now you are praying to God. तो आपने प्रभु की सुन ली वचन के द्वारा, अब आप प्रभु से So बात now कर रहे when हैं। you are worshiping, when you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, God is listening to you. प्रभु सुनता है। When you are listening, now when we are preaching, जैसे अब हम प्रचार कर रहे हैं, God is speaking through me and through people. तो परमेश्वर जो है पास्टर के द्वारा हम सबसे बात कर So रहे हैं। now you are listening to God's the word of God. मतलब पास्टर के द्वारा परमेश्वर जो बोल रहा है आप सब सुन रहे हैं। So prayer and God's word is completely different, तो प्रार्थना और वचन दोनों अलग चीज है, but very important. पर दोनों ही बहुत जरूरी है। So when you are listening now, you are listening to तो God, जैसे आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, and God is talking to you प्रभु आपसे बात कर रहा है through both of us हमारे द्वारा and through the word of और God. वचन के द्वारा। Now you are listening, अब आप सुन रहे हैं, and then now when you pray, अब आप प्रार्थना जब करेंगे, God is listening to अब you. प्रभु सुनेगा। What you are listening right now, अभी आप सुन रहे हैं, when you pray, लेकिन जब प्रार्थना God करेंगे, is listening तो to your प्रभु prayer. आपकी प्रार्थना को सुनेगा and He giving the answer. और आपको जवाब भी देगा। And when we say God heal us, और जब कहते हैं प्रभु को चंगा कर दो, God is listening to प्रभु you. सुनता है। That's why He heal you. इसलिए ठीक And when करता we है। say God, demon come out, और जब कहते हैं शैतान शक्तियाँ निकल जाओ, so God is listening to तो us. परमेश्वर सुनता है So God cast out the और demons. परमेश्वर निकाल देता है। And when we say God bless us, जब कहते हैं परमेश्वर हमें आशीष so दे, God bless us. प्रभु He आशीष देता है, listening to your prayer, वो सुनता है, so He bless us. तभी आशीष That देता is है। why prayer is very very important. इसलिए प्रार्थना बहुत बहुत जरूरी है। When you pray, जब प्रार्थना करते God हैं, listening to you. प्रभु सुनता है। When you pray, जब प्रार्थना करते God हैं, answer to you. जब प्रार्थना का जवाब So देता today है। I want to talk about prayer. तो आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना की। And what is prayer? तो प्रार्थना है क्या? Prayer is that you're talking to God. प्रार्थना मतलब प्रभु से बात करना। And prayer is not not a rule and regulation. प्रार्थना करना कोई नियम या कानून नहीं है। Prayer is not that you need to do like this, you need to know. और प्रार्थना करना ऐसे प्रार्थना करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे बैठ के, ऐसे खड़े के, ऐसा कुछ भी नहीं है। Bible said pray anytime, बाइबल बताती है प्रार्थना करो anywhere, कहीं पर भी हो, any place. कहीं पर भी You हो। can pray in the road, you आप can pray रोड पर in प्रार्थना the कर सकते हैं, without closing your eyes. अपनी आंखें बिना बंद करे भी प्रार्थना Why कर we सकते close our eyes? हैं। क्यों आप बंद करते हैं? God is not thinking about the closing प्रभु eyes. ये नहीं कहता आप बंद करेंगी ना तो ही सुनूंगा मैं इसको। God is there talking about our heart. प्रभु को पता है हमारा दिल से मतलब We close our eyes so that we will not distracted. जब हम अपनी आंखें बंद करें तो हमारा ध्यान नहीं भटकता, इसलिए हम बंद करते हैं। That's why when you close your eyes, you concentrate God. जब आप आंखें बंद करते हैं तो आप प्रभु पर ध्यान लगा पाते हैं। That's why we say close your eyes. इसे कहा जाता है आंखें बंद But if करें। you didn't close your पर eyes, अगर आप अपनी आंखें बंद ना when करें, you pray, जब प्रार्थना करते your हैं, heart is not connecting with तो आपका God. दिल प्रभु से जुड़ा हुआ नहीं होता। Your eyes running here and दिमाग there. इधर इधर आंखें सब ये जगह क्या हो जाती रहा है? ये क्या चल रहा है? ये क्या हंस रहा है? ये क्या बात रहा है? So we are distracted. हैं। तो हमारा ध्यान भटकता रहता है। That is why we close our eyes and we pray, और इसलिए हम आंखें बंद करके प्रार्थना करते so हैं, that every disturbances are closed, ताकि हमारे दिमाग में हर तरह का भटकाव बंद and हो you जाए। straight to talk to और God, आप प्रभु से ही अकेले बात and God करें is listening और to प्रभु you. आपकी सुने। And then that is why today the prayer is very very important. इसलिए प्रार्थना बहुत बहुत जरूरी है। And through prayer, many things are happening. और प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। And prayer is the communication with God. प्रार्थना मतलब प्रभु से बातचीत करना। Many people say, Pastor, I don't know how to pray. कई लोग कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करनी नहीं आती। Why? क्यों? You know how to talk to your friends. दोस्तों से बातें करनी You know आती how है, to talk to your husband and wife. पति पत्नी से बातें करनी Some आती है। people know how to talk. कई लोगों को बात करना तो आता है, Very talkative. बहुत ज्यादा बात करते हैं। And they didn't give chance to other people to कभी talk. कभी इतना बोलते हैं कि दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। They're always blah 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 blah. No, they're always talking. कुछ लोग हैं जो हमेशा बोलते ही रहते हैं। And
they are not allowed the other person to talk. कभी-कभी लोग इतना बोलते हैं कि दूसरे बंदे को बोलने का मौका नहीं देते हैं। But see, the same thing, when you pray to God like that, then you will never allow the Satan to talk to you. और ऐसे अगर आप प्रभु से भी इस तरह की बातचीत करने लगते हैं, शैतान को बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। So there is a prayer is that you have communication with God. तो प्रार्थना मतलब आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं। Just like your communication with your husband, जैसे अपने पति से बात your करते हैं, communication with your friends, अपने दोस्तों से बात your करते हैं, communication with your pastors, अपने पास्टर से बातें your करते हैं, communication with your mother, father. अपने मम्मी पापा से बातें You करते हैं। can talk to God as a child आप परमेश्वर से आप एक बच्चे होने के नाते बात कर सकते हैं, because you are the son of God. क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। You are the sons and daughter of परमेश्वर के God. बेटा और बेटियां हैं। We are the children of God. आप परमेश्वर की संतान So हैं, you can talk to Father. इसलिए आप परमेश्वर से बात कर You सकते can हैं। ask God, आप प्रभु से मांग my सकते Father, हैं I want कि job. पापा मुझे नौकरी चाहिए, I want this. मुझे ये चाहिए, I want healing. मुझे चंगाई चाहिए, I want deliverance. छुटकारा चाहिए, I want power. सामर्थ्य I चाहिए, want anointing. अभिषेक चाहिए। See, you can ask as a child. आप प्रभु की संतान होने के नाते जो कुछ चाहे मांग सकते हैं। Anything that you ask, जो भी आप मांगेंगे, God is listening to प्रभु you सुनता है and He is giving to और वो you. देता है। But if you didn't ask, लेकिन अगर आप मांगेंगे ही God नहीं, will not give you. तो प्रभु देता भी नहीं। He see you. वो देख तो रहा He है, knows that He need you. उसे पता है कि आपको चीज चाहिए, But He will not give it to you पर फिर वो देगा नहीं, because you are not giving क्योंकि आप and you are मांगते not नहीं। asking. That's what the Bible says in Matthew 7:7. इसलिए मत्ती 7 के 7 में क्या लिखा Ask, है? you shall be कि given. मांगो तो तुम्हें दिया जाए, Knock, the door be open. खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए So खोला जाएगा। God knows you need it. प्रभु को पता है हमें But चाहिए, unless you didn't पर जब ask, तक मांगते नहीं है, He will not give वो you. देता भी नहीं है। That's why everything that you want in life, इसलिए आपको जीवन में जो कुछ चाहिए, ask. मांगो, Ask for blessing. आशीष Ask मांगो, for healing. चंगाई Ask मांगो, for demon to cast out. शैतान से को निकालने Ask के for लिए मांगो, job. नौकरी Ask for मांगो, good family. अच्छा परिवार Ask मांगो, for children. बच्चों के लिए Ask मांगो, for your mother, माता father. पिता के लिए मांगो, Whatever your trouble, जो परेशानी है, you ask to God. आप प्रभु से मांगे, Then God will answer तब प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब and He will देगा give it to you. और दे देगा। You know, yesterday, कल क्या हुआ? God is really answered my prayer. परमेश्वर ने सच में की प्रार्थना का जवाब I दिया। was morning in the prayer reading Bible. I was praying. पास्टर सुबह प्रार्थना कर रही थी। And Lord, I need today I will go to market. परमेश्वर मैं आज ना मार्केट जाऊंगी। And then, but I have limited money. पर पास्टर कह रही कि मैंने परमेश्वर में पैसे ना थोड़े हैं, कम पड़ गए। But I need a 5,000. 5,000 रुपए चाहिए। I need to arrange something. कुछ लेना है। And then so many things, cosmetic, lipstick, I love it. So I asked God. I asked God for everything. तो पास्टर कह रही है परमेश्वर सब कुछ मांगती है। This is no for fashion. What I want, I ask God as a तो daughter. पास्टर कह रही है मैं परमेश्वर की बेटी होने के नाते मुझे जो चाहिए होता है मैं अपने पिता I से ask मांगती हूँ। lipstick to God. लिपस्टिक भी चाहिए I होता ask है, cosmetic to God. कॉस्मेटिक भी मांगती है। God giving. प्रभु देता है। So nothing that we think, oh, you know, makeup, these things are kharab hai, pav and no. You do for God and God bless us. तो पास्टर ऐसा कह रही है कि जो मेकअप करना कुछ गलत नहीं है, परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। And then also, but everything is in your heart. ये सब चीजें आपके दिल में When है। you do it, don't be attract and don't try to attract men and women. लेकिन अगर आप जब करें तो किसी को आकर्षित करने की कोशिश And करें don't try to do for people to be make you that beautiful. और लोगों को ये दिखाने के लिए ना करें कि आप सुंदर हैं, But do it for God. पर प्रभु के लिए So करें। I was praying. तो प्रार्थना कर रहे थे। Then somebody told me, तब किसी ने कहा let us go to market. पास्टर चलो मार्केट चलते हैं। Then I said, no, I'm very hot, I'm not coming. पास्टर ने कहा नहीं बहुत गर्मी है मैं नहीं No, जाऊँ। pastor, come. I have the auto. Bring it to your house. Come down. Auto is in the niche. तो किसी ने कहा कि पास्टर मैं ऑटो लेकर आ रहा हूँ या आ रही हूँ और आप नीचे आ जाओ। Then I went. Then I फट नहा के ड्रेस करके नीचे आ गया। तो क्या है कमला नगर में लेके गया था। तो कमला नगर में गया था तो बता रहा था कोई भी चाहिए आप चूज कर लो। So that what is the 10,000, 20,000, whatever you want, choose it, and I'll buy for you. तो उन्होंने बोला कि पास्टर जी आपको जो खरीदना है 5,000, 10,000, 20,000 का जो खरीदना है खरीद लो मैं पैसे दूंगी। And today is my day. And she was telling me that for the mother days that I want to give you, and then whatever you want to it. तो मैं पास्टर से पास्टर जैसे मदर्स डे आ रहा है तो मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ तो आप अपनी पसंद से ले लीजिए। Then in my heart, no, I want to buy all my creams are finished. I want to buy it. तो पास्टर ने बोला कि नहीं मुझे तो क्रीम खरीदनी है, मेरी सारी क्रीमें खत्म हो गई है। All the dress मेरे पास बहुत dress तो जरूरी नहीं था। वो इंसान को नहीं बताया, मेरा दिल ही था। So I didn't tell to the person that I need this thing. But in my heart, I don't want to dress. I have a lot of dress and I don't want to buy. तो पास्टर कह रहे बस कपड़े बहुत है मैं कपड़े खरीदना नहीं चाह रही थी। Then he said, no, buy the dress that which one you like.
it. तो उन्होंने बोला कि आपको जो कपड़े खरीदने हैं आप खरीद लीजिए। Then we went to, you know, what is that, Pantaloon? We went to all the branded place. He was taking me, don't buy outside. तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप अच्छी दुकान से अच्छा कुछ खरीद लीजिए And you need to buy a branded. और ब्रांडेड चीज खरीद लीजिए। And don't buy बाहर 10 रुपया 10 रुपया 100 रुपया मत नहीं। हम अंदर जाके buy करना है। तो ठीक है, तो मैं 4000 करने के लेके आया था, ट्राई कर रहा था और मेरा दिल में नहीं 4000 में नहीं लेंगे। So I do so many things. Then later on she said that okay, I will buy cosmetic. So what cosmetic you तो want? उन्होंने बोला कि ठीक है पास्टर, आपको जो जो कॉस्मेटिक्स चाहिए वो भी आप खरीद लीजिए। So we buy dress and he said cosmetic also. तो कपड़े भी खरीदे, कॉस्मेटिक्स भी खरीदा। That is I want. तो पास्टर कह रही मैं यही चाह रही थी। I didn't tell her, but that is really I want. पास्टर कह रही मैंने उनसे कहा नहीं, लेकिन ये मेरे दिल में था। And then she was telling me the cosmetic place, and she said whatever you needed, take it. तो उन्होंने बोला कि पास्टर जी आपको जो भी खरीदना है खरीद लीजिए। Then all the things that I need, I bring down. Then 5,000 come in. तो जो भी पास्टर ने खरीदा था 5000 रुपए का सामान खरीद लिया। So like the thing I'm talking about, I was praying to God, God, I need these things. तो पास्टर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर मुझे ये सब चाहिए, आप मुझे दे दीजिए। I was really asking morning. तो सुबह के समय पास्टर परमेश्वर से मांग रही थी। But I never know that God has already planned for me. तो पास्टर कह रही मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर इनके लिए पहले ही तैयारी करती थी। So that I'm talking about God. Whenever you talk to God, God always answers. जब भी हम परमेश्वर से बात करते हैं परमेश्वर जवाब देते हैं। I'm talking about the importance of prayer. तो हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के महत्व की। Sometimes we think that oh उस चीज तो मैं नहीं मानेंगे, प्रभु को ना फनी हो जाएंगे, प्रभु को नहीं देंगे। So you sometimes you preserve something in your कई life. बार क्या होता है कि हम प्रभु से बड़ी-बड़ी चीजें तो मांगते हैं, लेकिन छोटी-छोटी जरूरतों को नहीं मांगते होते। क्या मजाक लग रहा है तो प्रार्थना में छोटी-छोटी चीजें मांगना भी। और दूसरा होते हैं मांगने के लिए, हम इसे सोचते हैं नहीं। God said come as a child, I am your father and mother. तो परमेश्वर कहते हैं कि बेटा बेटी के रूप में मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हें दूंगा। See, you child ask anything. आपके बच्चे कुछ भी आपसे You मांगते child हैं। ask for food, ask for clothes, ask for anything, you know, toys, ask for candy, ask for everything. तो आपके बच्चे आपसे बड़ी-बड़ी चीजें नहीं, लेकिन छोटी टॉफी भी मांगते हैं, चॉकलेट भी मांगते हैं, खिलौने भी मांगते हैं। And when you go to the road, Papa, he doesn't know that you have money or not. बच्चा ये नहीं सोचता कि पापा की जेब में पैसा है कि नहीं है, लेकिन जो उसको चाहिए होता है मांगता रहता है। He doesn't know what my parents have or not. उसे नहीं पता कि पिता के पास है कि नहीं। Anything that comes in their mind, जो भी उनके मन में आता है ask their वो parents. मांगते हैं। Same thing. इसी तरीके You से are the child of God. आप प्रभु की संतान हैं। You can ask anything. आपको जो चाहिए Come to your mind, आपके मन में आए, and God will give you. प्रभु आपको देगा। But when you ask to people, लेकिन अगर आप लोगों से मांगते हैं, people will disappointed you. लोगों को निराश People करते will हैं, angry with you. लोग गुस्सा है People will say, no, I cannot do it. लोग कहेंगे नहीं मैं कर नहीं But सकता। when you ask to God, लेकिन जब प्रभु से मांगते हैं, God will arrange for you. प्रभु आपके लिए जरूरतों को पूरा करता है। And whatever you need, God will जो provide. भी आपको चाहिए प्रभु जरूरतों को पूरा That करता is है। why prayer changes things. इसलिए प्रार्थना चीजें बदलती है। So today my topic talk about prayer changes things. कि प्रार्थना चीजों को बदल So देती है। prayer is that you are talking as a friend, as a wife, as a husband, as a children, you talk to your children, same manner you can talk to तो God. प्रार्थना का मतलब ये है कि आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं, अपने पिता के रूप में या अपने पति के रूप में, अपनी पत्नी के रूप में, अपने दोस्त के रूप में, अपने बच्चे, किसी भी तरह के रिश्ता बना के परमेश्वर से बात कर सकते If हैं। you didn't have roti, you ask God. अगर कोई खाने को नहीं है तो प्रभु से मांगे। If you didn't have money to come to church, ask God. अगर पैसा नहीं है तो प्रभु से मांगे। See, God will not come and give like this. प्रभु ऐसा नहीं आके ये ले 50 रुपए He पकड़, will send somebody लेकिन कोई ना कोई आपके जीवन में लाएगा and He will help you. और वो आपकी मदद करेगा। Or even in the bus, He will give you a ticket. या कई बार आप बस में जा रहे हैं, आपकी टिकट कोई और भर देगा। But when you ask, He will automatically answer your prayer. लेकिन जब परमेश्वर आप कुछ मांगते हैं प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब देता है। But and then also when your situation happen, in the way that accident is going to happen, sickness is happening, तो जहाँ पर बीमारी आने वाली होती है, कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, ask God for healing. प्रभु चंगाई मांगे। Lord, I need your help. प्रभु जब की मदद I की need your जरूरत है, healing. मुझे चंगाई So चाहिए। when you automatically ask God, जब मांगे कुछ परमेश्वर से, God will automatically give to you. प्रभु आपको देगा। That is why asking God is very important. इसलिए प्रभु से मांगना बहुत जरूरी है। Amen. आमीन। Everyone listening? हर कोई सुन रहा है। So today we see in this first Samuel, तो जैसे आज हम देख रहे हैं पहले शमूएल में there is a one lady. एक औरत है। Who is that? क्या नाम है उसका? आप लोग पढ़ा था, कौन था? पार्टना करा था, अन्ना. So there is a one lady in this chapter. तो इस अध्याय में एक औरत है, इसका नाम हन्ना है। One chapter to talk about the lady. शमूएल पहले शमूएल के पहले दूसरे अध्याय में हन्ना के बारे में लिखा हुआ है। Hannah was a woman. हन्ना एक औरत थी, He wasn't married. वो शादीशुदा थी। But the Bible says God closed
her womb. पर बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर रखा था। See, many a time when people marry, they didn't have a child. कई बार क्या होता है, लोगों की शादियां तो हो जाती पर बच्चे नहीं होते। Children, everything come from God. बच्चे परमेश्वर की ओर से आते हैं। And sometimes the many people they giving a children. और कई बार क्या होता है, कईयों के तो बच्चे होते हैं Then they kill their child. और बच्चे होने के They बाद do abortion. बच्चों को गर्भपात कर देते They हैं, don't know abortion that कर that देते is हैं। come from God. जब उनके बच्चा आ जाता है कोख में तो बच्चे को मरवा देते हैं लोग। Sometimes people have married but they can't able to have a और child. भाई कई बार तो बल्कि ऐसा होता है, लोगों की शादियां होती हैं, सालों बीत जाते हैं, बच्चा नहीं होता। But they want a child. उनको बच्चा चाहिए। And then also a woman, और एक औरत when they marry, जब वो शादी होती if है, they didn't have a child, अगर बच्चा नहीं होता they are not fit to be a woman. तो वो बोलते हैं कि नहीं, अभी हमारे औरत होने में कुछ बाकी है। So that is why today many people when they didn't have child they cry. और इसीलिए आज बहुत सारी औरतों के जब बच्चा नहीं होता वो रोती है। So when once a lady married, the woman having child is very important. तो अगर एक औरत की शादी हो जाती है तो उसका बच्चा होना जरूरी होता है। So when they didn't have a child, they become shameful, they become a hopeless, they become a not able to make a mother. तो समाज में ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी औरत के बच्चा नहीं हुआ तो वो बहुत शर्मनाक चीज है। So now here is chapter 1. Hannah was a husband was a Elkanah. तो यहाँ पे बताया गया कि पहले अध्याय में कि हन्ना का पति कौन था, एल्काना। And then now and then also this man and he have a two wife. One woman was because in Old Testament time they used to marry so many wives. तो पुराने नियम में क्या होता था कि पहले आदमी की कई बीवियां होती थी, उसकी एक बीवी थी पनिन्ना और एक थी हन्ना। But New Testament come now in our time God didn't allow two wives. लेकिन ये पुराने नियम की बात है। नए नियम में जब यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, किसी भी इंसान की एक पत्नी से Only नहीं one होनी चाहिए, wife. सिर्फ एक ही पत्नी होनी So चाहिए। now this man has two wives. So one wife and she have so many child. तो जो पहली औरत थी, जो उसकी पहली बीवी थी, उसके बहुत सारे बच्चे हुए। So Hannah always looking the another woman having many child. She was really shameful. और दूसरी जो बीवी थी जो हन्ना थी, उसके बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए वो हमेशा दुखी रहती थी पहली बीवी को देखकर। And there are so many people complain about और Hannah. बहुत सारे लोग शिकायत करते Oh, हैं, you're not able to have a child. लोग बहुत शर्मिंदा करते What हैं, happened to you? अरे क्या हुआ, बच्चा नहीं हो रहा। Your husband another wife having child. It is because of your problem. अरे तुम्हारे पति की दूसरी बीवी के तो इतने बच्चे और तुम्हारे नहीं, इसका मतलब परेशानी तुम में है। Sometimes when the person have this child, कभी-कभी किसके बच्चा नहीं होता, when you go to doctor, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, sometimes men they will say man has a कई problem. बार डॉक्टर बोलेंगे कि आदमी में परेशानी है, Sometimes women they say woman has कई a बार डॉक्टर problem. बोलेंगे कि औरत में परेशानी So है। now here the Bible say, यहाँ पर it is not all about the Hannah problem. It is not all about the man problem. तो ये हन्ना की परेशानी, ऐसा लोगों ने बताया कि हन्ना की परेशानी आदमी की परेशानी नहीं है। But the Bible say God has closed the womb. लेकिन बाइबल बताती है कि हन्ना की भी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर Verse रखा। 5. 5वें वचन में। But to the Hannah give a double portion. He loved Hannah, although the Lord has closed her womb. See, God is the one who closed her womb. तो परमेश्वर था जिसने उसकी कोख को बंद रखा, That is why he could not able to have a child. इससे उसके बच्चा नहीं हो रहा And she was so shameful. और वो बहुत शर्मिंदा होती थी। And that you see when you married, you didn't have child. How you feel it? आप सोचिए अगर आपकी शादी में बच्चा ना हो बहुत समय तक तो आपको कैसा महसूस होगा? The in-law will talk about, brother sister will talk about, colony will talk about, society will talk तो about. समाज के लोग कितना बात करते हैं। So then Hannah's life was so embarrassing. तो हन्ना का जीवन सच में बहुत शर्मनाक था, But the husband loved her. लेकिन पति उसे बहुत प्यार करता था। See, one thing is that Hannah was loved by husband. तो एक चीज है कि हन्ना का पति उसे बहुत प्यार करता था। And the husband did the best thing for Hannah. हन्ना का पति उसको सबसे अच्छी चीजें देता था। And Hannah was giving a double portion in everything. हन्ना को वो हर चीज का दुगना भाग देता था। Verse 5 say, the husband give a best thing, double portion, and if the husband buy a cloth, he will give double portion to Hannah. तो 5वें वचन में लिखा हुआ है कि हन्ना का पति उसको हर चीज का दुगना भाग देता था। Everything, money, gold, silver, जो house, भी वो property. एक पत्नी को देता दूसरी वो हन्ना को उसे दुगना देता था। But still Hannah was not happy. पर फिर भी हन्ना के अंदर आनंद नहीं था। She have everything but not happy. उन्हें सब कुछ सारे की खुशी नहीं थी। See, today we have so many people, they have everything in life. आज बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत कुछ है, They have a gold, सोना they है, have a silver, चांदी they है, have a house, घर है, they have a job. नौकरी है, But many people, they didn't have peace. पर बहुत लोगों के जीवन में शांति नहीं है। They crying every day. वो हर रोज रोते They हैं, complain every day. हर रोज शिकायतें करते हैं And they have no peace. और शांति नहीं So होती। Hannah said, the Bible says Hannah have everything. तो बाइबल बताती है कि हन्ना के जीवन में भी सब कुछ तो था, Because he lacked one thing. पर एक चीज नहीं थी, He didn't have a child. बच्चा नहीं था। See, many a time we are suffer. कई बार हम परेशान होते हैं, You have everything.
thing. पर एक भी चीज रह गई। What? क्या? No peace. शांति नहीं। Or you lack one thing. कई बार क्या होता You है? didn't have Jesus. आपके पास यीशु नहीं होता। You have everything. सब कुछ है। You have house, you have children, घर है, you बच्चा have है, सोना है, property. चांदी है, प्रॉपर्टी है। But if you didn't have God, अगर प्रभु नहीं है, you did not have peace and joy and blessed तो life. आपके अंदर शांति, आनंद और आशीषित जीवन नहीं है। Only God will come that satisfaction. सिर्फ परमेश्वर ही है जिसके अंदर आके हमें संतुष्टि मिलती है। So now Hannah have everything he had. तो ऐसे ही हन्ना के पास भी सब कुछ था। Husband give double portion to her. पति ने उसको हर चीज का दुगना भाग दिया था। Husband love her पति प्यार करता था more than any other thing. किसी और चीज से भी ज्यादा। But she didn't have love. बस फिर भी उसके अंदर शांति नहीं थी। She was crying वो every रोती day. रहती थी हर रोज। She was looking for God हर रोज प्रभु को ढूंढती and थी। for having a child. रोज प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मुझे बच्चा दे दो। So how will Hannah do? तो हन्ना ने क्या किया? Hannah never go to people. हन्ना लोगों के साथ जाके शिकायत He नहीं never करती go to people. I didn't have a child. Then he never run to doctor. हन्ना कभी लोगों के पास जाके नहीं रोती थी कि परमेश्वर में बच्चा नहीं है, परमेश्वर में बच्चा। लोगों को नहीं बोलती थी कि बच्चा नहीं है। Hannah went and she never went and said her problem. हन्ना कभी समाज में लोगों के पास जाके अपनी परेशानियों को नहीं बताती थी। Because Hannah know that if I see people more bring problem. क्योंकि हन्ना को पता था अगर मैं लोगों के साथ बांटूंगी तो लोग तो सिर्फ और परेशानियों को बढ़ाएंगे और शर्मिंदा करेंगे। Amen. आमीन। God is good. All the time. Some people are sleeping. So now what is that? I want to tell is that Hannah run to God. तो हन्ना ने क्या लोगों के पास नहीं लेकिन Sometimes when we have problem, जब हमारी परेशानी होती we है run to people. हम लोगों के पास बांटते हैं। We didn't go to God. हम प्रभु से नहीं बांटते। We didn't pray to हम God. प्रार्थना नहीं When you करते। didn't have money, जब पैसा नहीं होता you didn't pray to God. आप प्रार्थना तो नहीं You करते started calling लेकिन people. फोन करते लोगों को। Then people will give you gali. लोग गाली देंगे And then now you're disappointed. फिर आप निराश And भी people हो will say I didn't have money. और लोग बोलेंगे पैसा नहीं है मेरे And पास when you didn't have a job, और जब नौकरी नहीं होगी instead of you pray to God, आप प्रार्थना नहीं you करेंगे go to office to लेकिन office. आप ऑफिस से ऑफिस You भाग try रहे your हैं। best. आप कोशिश You कर give रहे it हैं resume. आप रिज्यूमे दे But रहे not हैं getting पर job. नौकरी नहीं मिल रही Or when you are sick, जब बीमार है you didn't pray to God. प्रार्थना नहीं You करेंगे go to doctor to और डॉक्टर में doctor. डॉक्टर बदल रहे Medicine to हैं medicine. दवाइयां पे दवाइयां खा But रहे हैं last you didn't get it. पर लास्ट में क्या हुआ कुछ नहीं हुआ See Hannah what she do? तो हन्ना ने क्या She किया didn't have a child. हन्ना के बच्चा नहीं था She didn't go to वो doctor. डॉक्टर के पास नहीं She गई didn't consult वो doctor. डॉक्टर से बात She नहीं didn't go to की people. लोगों से बात नहीं करी But what she do? पर क्या किया उसने She go to the church. वो कलीसिया में गई And she went to God. और प्रभु के पास गई And she went and she was crying. और प्रभु के पास जाके वो रोई Lord, you must give God side. कि प्रभु आप बच्चा दे You give me a son. आप मुझे बेटा दे I need a son. मुझे बेटा चाहिए I have everything. सब कुछ है मेरे पास But I didn't have a पर child. बच्चा नहीं है Please give me. प्लीज मुझे बच्चा So दे she was crying in the church. तो रो रही थी कलीसिया में Like a mad person. एक पागल औरत की तरह Like a drunkard ये person. शराब पी रखी हो उसने Then in the church there is a pastor. अब कलीसिया में एक पास्टर जी भी थे There is a priest. एक पंडित था And that priest told her, तो उस पंडित ने बोला why you are drinking? अरे शराब पी के क्यों आई हो Because Hannah was crying like a drunkard क्योंकि वो person. इतना रो रही थी ऐसा लगा था कि शराब पी कर आई है Sometimes we go to doctor and रोते हैं और डॉक्टर मेरे को ठीक कर दो मैं इधर पेन है वो है. So Hannah didn't go and doctor and complain and crying. तो हन्ना किसी डॉक्टर के पास नहीं कि परमेश्वर को आके रो रो कर उसने अपनी गुहार लगाई He come to church वो कलीसिया में आई and he left everything सब कुछ छोड़ दिया and he was asking और God, प्रभु से मांग you are रही the थी one who कि created आपने me. मुझे बनाया You है are the one who made my marriage. आपने भी शादी को You are बनाया है giving me a husband. आपने मुझे You are पति दिया giving me है a family. आपने मुझे परिवार I need दिया a है child. अब मुझे बच्चा चाहिए Give to me. वो भी आप मुझे He दे। was not weeping and pouring out his heart. वो रो रही थी बिलक बिलक कर रो रही थी वहाँ पर And he was like a drunkard person asking God. जैसे कि बिल्कुल कुछ सुध ही नहीं थी तो पीकर इंसान आया हो वैसे हो गई थी And then the priest, the pastor name is Eli. तो यहाँ पर एली नाम का जो महायाजक था Verse 12. बारहवें वचन में लिखा है And what is that? Eli was telling to Hannah. तो एली ने हन्ना से क्या बोला And then also eating and drinking, and Eli was priest and sitting on the seat. Okay, read there in verse 9. You read. Pretty read. Verse 9. So the Hannah arose and they went, finished eating and drinking. See now, Eli priest was sitting on the seat, the doorpost of the tabernacle, the Lord, and she was bitterly of soul and praying to the Lord. तो यहाँ पे And लिखा wept. है तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मांगी है सेनाओं के यहोवा यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसको जीवन भर
यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु शब्द सुनाई नहीं देता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है प्रभु, मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने तो ना दाखमधु पिया है और ना मदिरा पी है। मैंने तो अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। Amen. See, Hannah was crying bitterly. तो हन्ना बिलख बिलख कर रो रही। So pastor was telling to Hannah, तो वहां के याजक, why you are drinking? अरे शराब पी के क्यों आई हो? Drinking and drunkard and coming and crying and rolling and और यहाँ पर बिला ऐसे पी कर बैठी हुई और बोले जा रही हो। Maybe the Hannah was like his pour out his body and breathing and he was surrendering to हो God. सकता है कि हन्ना बिल्कुल लेट के प्रार्थना कर रही हो, बिलख बिलख के प्रार्थना कर रही हो। And then the Eli thinking that this woman is drunkard. तो एली ने भाई औरत तो पी कर आई है, जैसे चर्च में पड़ी हुई है। Then Eli told them, why you are drinking तो wine? एली ने कहा, क्यों शराब पी कर आई हो तुम? Then Hannah said, no, no, Prabhu. उसने कहा, नहीं मेरे I प्रभु, am not drinking a मैं wine. शराब पी के नहीं आई I हूँ। was talking to my मैं father. अपने पिता से बात कर रही I हूँ। can have a child. मैं बच्चा नहीं I है, need a child. मेरे को बच्चा चाहिए। I was pouring out my मैं अपने heart. दिल की बात प्रभु को बता रही थी। And I was like, he was pouring out his heart and mind and soul and वो अपने everything. पूरे मन की बात प्रभु के सामने रख रही थी। And then now she was praying. अब वो प्रार्थना कर रही थी God was listening her और prayer. प्रभु उसकी प्रार्थना को सुन रहा था। And then also Hannah was telling them, और हन्ना कह रही थी, I have a bitterness spirit. I have a spirit of sad. मेरे में एक उदासी की आत्मा है मेरे अंदर And that make me sad. और यही चीज मुझे उदास I करती है। have everything. सब कुछ है मेरे My पास। husband loved me. मेरे पति मुझे I बहुत got प्यार the करता double है। portion. मुझे हर चीज दुगना भाग But मिलता there is है। a spirit of sadness. लेकिन एक आत्मा है जो उदासी की आत्मा है। See, that is why sometimes we have a sad, sorrow, pain. There is a spirit. इसलिए in कई our बार क्या होता है, दुख और उदासी की भी आत्मा होती है हमारे So अंदर। Hannah said, I have the spirit of sadness. तो हन्ना ने कहा, मेरे अंदर दुख की आत्मा है So that is why I am sad. और इसलिए मैं दुखी हूँ। I have everything. सब कुछ है मेरे पास। And he was telling to the Eli, the pastor. और वो याजक को बता रही थी। Then Hannah continued praying. तब हन्ना ने प्रार्थना करती He रही। was making a covenant with God. वो प्रभु के वाचा बांध रही थी। What he made क्या वाचा covenant? बांधी उसने? He said, Lord, if you give me a son, I will give it back to you. तो हन्ना ने कहा, ठीक है प्रभु, एक वाचा बांधती हूँ, अगर आप मुझे बेटा देंगे ना तो वो बेटा मैं आपको दे दूँ। So sometimes you need to have a strong prayer life. कभी-कभी क्या होता है कि आपको प्रभु से कुछ मांगने के लिए बहुत ज्यादा सामर्थ्य प्रार्थना करनी होती है। Sometimes God didn't give you. कई बार प्रभु की प्रार्थना Then you continue to pray. तो प्रार्थना You करते need to make a covenant. कभी-कभी आपको वाचा बांधनी पड़ती है। बहुत जरूरी है. Sometimes you ask something never go. कभी-कभी आप प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं जा रहा है। Sometimes you ask for healing, Satan coming again and again. आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो, बार-बार शैतान आ रहा है। Sometimes you are asking for deliverance. आप छुटकारा मांग रहे हैं, Sometimes you are asking for job. आप नौकरी मांग रहे हैं, Not coming. नहीं हो रहा है। Then what you need to तो do? करना क्या है? You need to come with a covenant. तो एक वाचा बांधनी है। See, Hannah come with a covenant. हन्ना एक वाचा के साथ आई Lord, if you give me, कि प्रभु अगर आप मुझे बेटा I will दोगे, give you back. वो बेटा मैं आपको दे दूँ। You must give it. आप मुझे दे दो। So sometimes you need to ask God, कभी-कभी आपको ही प्रभु Lord, को if you heal me, प्रभु अगर आप चंगाई दोगे, I will give you मैं testimony. गवाही दूंगी। Lord, if you give me job, अगर आपने नौकरी I will दी, give you 10 times. मैं आपको टाइप दूंगी। Lord, you give me money. प्रभु मुझे पैसा Or दो। Lord, you solve my problem. आप प्रभु की परेशानी का I हल will दोगे, give you testimony. मैं आपकी गवाही दूंगी। So sometimes we need to make a covenant. कभी-कभी हमें प्रभु से वाचा बांधनी पड़ती है। Or sometimes you make a covenant. कभी-कभी वाचा बांधते हो, God answer your prayer. प्रभु ने जवाब नहीं But दिया। after receiving, पर मिलने के बाद you are not हम giving वाचा पूरी नहीं testimony. करते, गवाही What नहीं you are देते। make covenant with जो God, वाचा प्रभु से बांधी थी, you are not doing. वो नहीं करते, That is a sin. वो पाप है। So whatever you make covenant, जो भी वाचा बांधते हैं, you need to do it. आपको करना ही है। Sometimes I pray for something. कई बार पास्टर की जिसने प्रार्थना करती है, My prayer is not working. इनकी प्रार्थना काम Then I नहीं used to करती, make a तो covenant. ये वाचा बांधती है। Lord, you will answer this prayer. प्रभु अगर आप ये करेंगे, I will do this one. मैं ये करूंगी। And when God answer my जब prayer, प्रभु करता है, and I come with a covenant, प्रभु जब वाचा He always answer my और prayer. जब पास्टर के लिए वाचा के साथ प्रभु के सामने आती हूँ, परमेश्वर मुझे जवाब भी देता है। All the मुश्किल वाला भी मैं covenant से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु जवाब देते हैं और आंसर देते हैं। उसके बाद मैं कुछ प्रभु का हम दोनों का पीस किया था, मैं प्रभु बोल देते हैं। So if you are not doing, then you are a sinner. और अगर आपने प्रभु से वाचा बांधने के बाद वो नहीं किया जिसकी आपने वाचा बांधी है, तो आप धोखा दे रहे हैं। So now Hannah said to God, तो हन्ना ने प्रभु से Lord, कहा, if you give me, अगर आप प्रभु मुझे बेटा दोगे ना, then I will give you back. तो बेटा मैं आपको ही दे दूंगी। Hannah didn't ask daughter. हन्ना ने नहीं कहा कि एक बेटी दे दो, Hannah asked son. हन्ना ने कहा मुझे बेटा दे Give दो, me a son. मुझे एक बेटा दे दो, I will give you back. मैं आपको दे दूंगी।
Then God answered her prayer. प्रभु ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। After that prayer, और उस प्रार्थना के she बाद went back. वापस गई, She with her husband, अपने हस्बैंड के साथ रही and she was pregnant. और प्रेग्नेंट